Hello friends, my name is Umkar and welcome to Srikant Biology channels. Dear students, from today we're gonna talk about the 12th science biology syllabus. हम स्टार्ट करें 12th साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द reproductions in lower and higher plants. Reproduction. These are the first chapter in notebook. And they are the very interesting chapter. Very interesting. Reproduction in lower and higher animals. These are interesting chapters. That's why the Maharashtra governments are put the first chapter in your notebook, right? So let's go without wasting of time. Then these are the first lecture of reproduction in lower and higher plants. Okay, chalo. So what we have to look in these lectures? The first of all, we just introduce what is exactly reproductions. What's the meaning of that, and then discuss about the type of reproductions. There are two type. We'll be discussing this. Then we'll discuss regarding to the type of a sexual reproduction as like fragmentation, budding, binary fission, cuneiform formation, and vegetative propagations. In the vegetative propagation we also subdivided by as like cutting, grafting, and tissue cultures. So all these presentations, all this point we'll talk in this lecture. So get ready. I hope you are ready for that. Let's go. We start from the introductions of reproductions. Reproductions. Produce. The reproduction is on the biological process. Keep in your mind. This is not physical. Okay. So these are the biological process, and by which means the organism produce. Organism reproduce an offspring. That is the similar. Biologically similar. It's not identical. Okay, they are biologically similar. It means some character transferred from to parent their body to the offsprings. This is simply called as reproductions. Why reproduction is very important? Why they are essential for the life? Because they sustain. Without reproductions, animal and plant can't be sustained, can't be survive on the earth. Without without reproduction, they can't be survive. If the some species are not get reproduce ourselves, and then we'll be see they are they are they're extinct. They're extinct from the earth, totally extinct. So that's why the reproduction is on the essential process of life. Okay, so it's really important. That's why the reproduction is able to ensure that continuity. क्या करता है वो? इंश्योर करता है कि आपकी लाइफ क्या हो, कंटिन्यूटी हो. राइट, इसलिए तो शादी करते हैं ना लोग. राइट, क्योंकि हमारा कोई वंशज आगे बढ़े. राइट. देन द जनरेशन after generations, so it is the main feature of the life. That's it. So these are the some important points regarding to the reproduction. भाई important points है ये कि भाई reproduction है क्या? These are the biological process organism अपनी तरह एक similar organism बनाता है. They call it simply reproduction. Sorry. And then why it's important? Because they ensure that the organisms continuity generation to generations. तो भाई इंश्योर देता है कि हमारी लाइफ आगे भी, हमारे जो वंशज है वो आगे भी बढ़ते रहे, ताकि हमारी 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 पीढ़ी खत्म ना हो. हमारी पीढ़ी खत्म ना हो और हमारा वंशज कोई ना कोई आगे बढ़े. दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर ऑर्गेनिजम्स लाइफ में ये चाहता है कि अपना वंशज क्या बढ़े, आगे बढ़े. ठीक है. सो दैट्स दिस इंट्रोडक्शन ऑफ reproductions. Now the reproductions are two type. The first one is a sexual reproductions, another is sexual reproductions. Right. So plant having two type of reproductions. Some are sexual reproduction and some are asexual reproductions. So what is exactly sexual reproduction? हम देखेंगे इस लेक्चर में what is exactly a sexual reproductions. A sexual reproductions, it means that only one parent is involved in these formations. एक organisms, एक parent body और उससे दूसरी बनी, एक का डबल, ये का डबल करता है. राइट. तो सिंगल क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से दूसरी बॉडी बनती है. दे कॉल्ड एज asexual reproduction. Let's what are the asexual reproductions? It is a process resulting the productions of
जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, राइट? बाहुबली मूवी में महेंद्र बाहुबली का लड़का महेंद्र बाहुबली दिखता ना आइडेंटिकल, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, नेवर नेवर एवर, कभी नहीं। अगर बनता है विद द हेल्प ऑफ क्लोन्स, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सो व्हाट इज एग्जैक्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? भाई आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनना, वो भी सिंगल पैरेंट से, दे कॉल्ड एज asexual reproductions, right? And the much morphologically and genetically characters are same in the individuals, they called as clone. क्लोन बनाता भी कैसे, समझो कि मेरे पास एक था आलू, ठीक है? तो समझो कि मेरे पास था भाई एक आलू, ठीक है? समझो कि मेरे पास एक आलू था, और इस आलू ने क्या कर दिया, खुद को डिवाइड कर दिया, और क्या बना दिया यहाँ पे, कुछ आइडेंटिकल अपनी तरह एक बॉडीज बना दी, राइट? कितने पेरेंट थे भैया, आप इनमें सिंगल। अब ये आलू भालू नहीं बना पाएगा, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बियर, आलू कभी भालू नहीं बना पाएगा। पता है बैड जोक था, लेकिन समझो कि भाई यहाँ पे होता क्या है कि वन सिंगल ऑर्गेनिज्म से टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनते, राइट? सो दे कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई इनका डिवीजन कैसे होता है फिर, किस टाइप का डिवीजन करते हैं? दे आर डिवाइडेड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से। सर माइटोसिस है क्या? माइटोसिस इट मींस द क्रोमोसोम नंबर गेट इक्वल, क्रोमोसोम का नंबर अगली जनरेशन में क्या होता है, इक्वल रह जाता है, राइट? जैसे कि हमारे सोमेटिक बॉडी में होता है, द वन सेल इज डिवाइडेड इनटू गेट टू डॉटर सेल्स, सिंपल। तो आपको ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है, ठीक है? देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खूबियां क्या है? तो पहले खूबी की उसकी कि भाई तो ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पैरेंट, ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म से, समझो समझने के लिए इंसान का मैं निकालता हूँ, अब इस ऑर्गेनिज्म से अपने आप क्या बन जाएगा, दूसरा एनिमल बन जाएगा, है ना? तो एक ही एनिमल इसमें इन्वॉल्व होता है, देखो सिंगल, सिंगल। अब एनिमल की बात नहीं है, ये हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई एक अमीबा लिख सकते हैं, ठीक है? समझो अमीबा है, और ये क्या हो गया, एक से दो बन गए, दिस इज कॉल्ड एज ओनली सिंगल पैरेंट एनिमल देयर, देन नो फर्टिलाइजेशन गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। भाई एक ही पैरेंट है, तो गैमेट फॉर्म होंगे कैसे, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इट मींस द मेल गैमेट and female gamete, and female gamete and female gamete, ठीक है? फ्यूज, फ्यूज टुगेदर, टुगेदर, हम फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं भाई, जायगोट, ठीक है? फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन सिंपली। द मेल एंड फीमेल गैमेट, भाई मेल गैमेट है क्या, स्पर्म है, फीमेल गैमेट क्या है भाई, एग है। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जायगोट, दे कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरेंट है, there is no gamete formations, right? So there is no fertilization is also occur. This is the characteristics of a sexual reproduction. Then this process take a very very few time, खूब बहुत ज्यादा कम ये समय लेते हैं। मतलब समझो कि एक मेरे पास बिकर है इस प्रकार से, और एक का एक डिवाइड होने में, एक सेल डिवाइड होने में समझो सिर्फ 1 मिनट लगता है, कितना, 1 मिनट। समझो कि एक सेल डिवाइड होने में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितना मिनट लगता है, दो होने में एक, एक का डबल होने में 1 मिनट लगता है, समझो। अब मैंने एक बैक्टीरिया को क्या कर दिया, एक ग्लास में डाल दिया, और फिर एक का डबल, दिन दो का चार, 8, 16, 32, 64, दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइड,
राइट। अब वो डिवाइड कंटिन्यू होता रहेगा और बढ़ते 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 हो गया आधा। कितना हो गया? आधा। ऐसे करते करते समझ लगा उसको, लेकिन वो आधा हो गया। अब समझो कि वो आधा हुआ, ठीक है। अब उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आधा होने में कितना समय लगा वो छोड़ो, लेकिन उसको फिर से पूरा होने में कितना समय लगेगा? ओनली 1 मिनट। ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा हो जाएगा। बिकॉज एक से क्या होता है? डबल। तो एक से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दैट इज वेरी रैपिड ग्रोथ विद इन लेस टाइम। हमारे बॉडी में बहुत समय लगता है, ठीक है। देन दे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, ठीक है। दे मल्टीप्लाई गेट फटाफट, एक का डबल, दो का चार, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं वो। देन द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर, से एकदम सिमिलर रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आलू से आलू ही बनेगा, आलू से भालू नहीं। आपने बाहुबली मूवी तो देखी है ना, कहा था कि अमरेंद्र बाहुबली का एकदम ऐसे ही दिखता है, आइडेंटिकल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या भाई? कि ऑर्गेनिज्म जो आगे आता है वो कैसे आता है? एकदम आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजी इट मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस, जेनेटिकल मतलब इंटरनल, अंदर से और बाहर से पूरा वैसा, पूरा का पूरा वैसा होता है वो। ओके, तो ये कैरेक्टर्स हुए हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। तो पहला टाइप आता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेड बॉडी। Fragmented, it means the body is divided into several parts of the body and each part act as a new individuals. अगर मैं किसी भी पार्ट को कट कर दूं, स्पायरोगारा के, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रैगमेंटेशन। समझो कि इस फ्रैगमेंटेशन को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। समझो ये स्पायरोगारा है, इसको यहां से मैंने कट कर दिया, फिर मैंने इसको यहां से फिर से कट कर दिया, फिर मैंने इसको यहां से फिर से कट कर दिया। तो हो गए कितने पार्ट्स के? 3। तो बाद में ये तीनों पार्ट क्या करेंगे? अलग अलग स्पायरोगारा बन जाएंगे, राइट। इट मींस फ्रैगमेंटेड बॉडीज act as a new individuals, no gamete formations, right. So these are the asexual reproductions, right. And the example is spirogara, आपने पढ़ा होगा ये। Okay, चलो then another type, the next type is budding. Budding, that is very simple and very common, famous, common reproduction in asexual reproductions. The organisms, the plant simply, the unicellular mostly they are found in, they are growing some bud on the bodies. उनके बॉडी पे क्या आ जाता है? थोड़ा सा बड़ आ जाता है। बड़ मतलब क्या? बडी। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा काय बडी कुठचाला, दोस्तों को पुकारते हैं हम। काय बडी, काय सांगू तुला, राइट। ये वर्ड हम दोस्तों को पुकारते हैं। दोस्त मतलब क्या? हमारे हमारे पास, जो हमसे लगा हो, राइट। तो इसलिए जब किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म पे ऐसा छोटा सा बर्ड आ जाता है, इसलिए उसको बडिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो अब समझो कि क्या हुआ यहाँ पे, कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे क्या हुआ? यहाँ पे बर्ड ग्रो हुआ, ठीक है। बर्ड क्या हुआ यहाँ पे? ग्रो, ग्रो हुआ। देन ग्रो होते होते यहाँ पे हो गया क्या? मैच्योर। क्या हो गया यहाँ पे? मैच्योर। और मैच्योर होने के बाद वो क्या हो जाएगा? यहाँ से डिटैच। क्या हो जाएगा? डिटैच। और जैसे ही वहां से डिटैच हो गया, the detached part as an act like a new individuals, no gamete formations. This is simply called as budding. It means the bud grow on the plant body, and when the birds get mature, they are detached from the body and act as a new individuals. Simple है। As in the example of is the protospora and yeast. These are the diagram of yeast. ये yeast में पाया जाता है। yeast का इस्तेमाल पता है आपको कहाँ पे करते हैं? सुना होगा आपने, मार्केट में बहुत तबाही मची उससे। लोग घर के छत बिक रहे और वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, the productions of alcohol. Then, then move ahead, and the next asexual reproduction is spore formations. Then next asexual reproduction is spore formations. Spore. Assume that this is a simple sporangium.
Okay, this diagram is show the simple sporangium. Okay, assume that this is simple sporangium. It means these are the outer covers. Okay, when the spores are little minute spores are grow inside this sporangium, they continuously are grow inside this sporangium, right? And when the number of sporangium are increased in the cells, क्या हो जाएगा? फट जाएगा भाई. समझो कि मेरे पास एक बलून है. अब बलून के अंदर में कंटिन्यूसली हवा भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, हवा कंटिन्यूसली भर रहा हूँ. क्या हो जाएगा? बलून. बलून क्या हो जाएगा? फट जाएगा, राइट? फट जाता है वो. सेम एग्जैक्टली अपन ही से हो. जितने यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रस्ट क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जितने भी स्पोर बढ़ेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा इन द फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब ये क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा. ठीक है. और फिर हर एक स्पोर क्या हो जाएगा? न्यू जर्मिनेट हो जाएगा, न्यू न्यू ईस्ट बन जाएगा, न्यू अमीबा बन जाएगा. कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, अमीबा में भी ये पाया जाता है. ठीक है. तो ये होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशंस. ठीक है, सिंपल है. देन that is very simple process, and the very famous process are the binary fission. Fission it means two. एक का डबल होना, फिजन. एक का डबल, एक का डबल. और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? वर्ड सुना होगा आपने, फ्यूज टुगेदर. इट मींस दोनों का एक होना. फ्यूजन मतलब एक का दो, फ्यूज का मतलब दोनों का एक होना. यहाँ पे हो क्या रहा है? एक का डबल. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन्स. These are the one of the simplest and a complicated method of a sexual reproduction. होता क्या भाई यहाँ पे? इतनी सिंपल है तो होता क्या है इसमें? समझो एक मेरे पास सिंपल अमीबा की बॉडी है. ठीक है. अभी अमीबा की बॉडी क्या हो रही? ग्रो हो गई. ठीक है. अब ग्रो होके वो इस प्रकार से डिवाइड के लिए रेडी हो रही है. ठीक है, इस प्रकार से. देन दिस बॉडी गेट the nucleus start to divide and found a two different amoebas. Simple. They found a two different amoebas. These are simple process of binary fission. So one organism is divided into two, act as a new individual. They call as a binary fissions. Okay, simple. Then another simple methods that are put in your book. They are conidia formations. So this is an example of fungi. They call as penicillium. Okay, the penicillium are used in the medicine making. ठीक है, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं इसका. अब ये पेनिसिलियम, कि पेनिसिलियम क्या करता है? बॉडी पे कुछ ऐसे कोन फॉर्म करता है. ठीक है. सो दिस लुक लाइक अ कोन. दे कॉल एज कोन. अब ये कोन जब बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, दे एक्ट एज न्यू इंडिविजुअल. सिंपल है. स्पोर फॉर्मेशन की तरह बर्ड की तरह होता ही है, लेकिन बर्ड में थोड़ा एक ही बर्ड दिखता है आपको, मेजरली इतने बर्ड नहीं दिखते बॉडी पे, इसलिए उसको कोनिडिया फॉर्मेशन कहा जाता है. ठीक है. दिस आर द कोन्स. When this cone is detached from the body, they act as a new individuals and form a new penicillium. Okay, they are the fungus. This is simple. Okay. Then then the last sexual reproduction that are included in your notebook, they call as vegetative propagations. Vegetative propagation, it is, they are the simple method of asexual reproductions. The plant, the reproduce occur the cut by the leaves, root and stem. Which? Root, stem and leaves. These are the three important ones to note down here. Root, stem and leaves. Root, stem and leaves. That can be occur by the fragmented, by fragment मतलब क्या? टुकड़े कर देना, right? And regenerated of specific vegetative part of the plant. फिर वो कटा हुआ पार्ट क्या करेगा? एज एक्ट न्यू प्लांट में बन जाएगा. सो दीज आर द सिंपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ओके. देन आज लाइक एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देख सकते हैं आप. पहला आता है कटिंग. कटिंग द पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेसिफिकली stem and leaf. I'm not talking about the root. The specifically stem and leaf cut the planted into the soils. किसी भी आप स्टेम को, प्लांट को देखो, सारे प्लांट नहीं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं. ठीक है. आप बोल के सर दुनिया में हर प्लांट नहीं, कुछ स्पेसिफिक. बेशरम का देखो आप, बेशरम से झाड़ सॉइल में आप प्लांट करो कहीं पे भी आ जाएगा, राइट? लेकिन आप बाबुल का देखो, थोड़ा नहीं आता वो. ठीक है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल प्लांट्स आर नॉट डू दिस act. The stem and leaf cut and planting into the soils. The cutting are sometimes treated to the hormone include the development. हार्मोन्स डेवलपमेंट होते हैं इसके बॉडी में. कौन कौन से भाई? आपने सुना होगा ऑक्सीजन, जिबरलिन,
राइट। तो ये ऑक्सीजन नाम का हार्मोन क्या होता है, इंड्यूस करता है उसको ग्रो होने के लिए, ठीक है, उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बढ़ाता है, ठीक है, अपाइकल्स एंड intercalary meristem. Then at the cutting body part, when you planted inside the soils, they act as a new individuals. फिर उससे बड़ा plant बनेगा, दूसरा plant बन जाएगा, ठीक है। So this is simple process of cutting in the vegetative propagations. Then grafting. Grafting there are also simple methods. The cutting of the some other plant, other plant किसी और plant का आप क्या करो, कट करो भाई। समझो कि यहाँ पे मैंने एक प्लांट कर दिया यहाँ से कट, ठीक है, एक प्लांट को मैंने कर दिया यहाँ पे कट कर दिया, समझो सिंपल है। एक मैंने बाम्बू लिया इस प्रकार से, और इस प्लांट के मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, सिंपल। और इस प्लांट के अंदर मैंने क्या कर दिया, दूसरा पार्ट यहाँ पे लगा दिया किसी दूसरे प्लांट का। समझो मेरे पास एक एक यहाँ पे था पीपल, ठीक है, अब पीपल का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट कुछ कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंगो लगा दिया, ठीक है, मैंगो को यहाँ पे स्टेम लगा दी छोटा सा। फिर वो स्टेम क्या करेगी, यहाँ से न्यूट्रिएंट लेगी और बन जाएगी नए प्लांट में, न्यू प्लांट में बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिफ्टिंग, ठीक है, दो प्लांट का जोड़, दो प्लांट का जोड़ को क्या कहते हैं, ग्रिफ्टिंग, ठीक है, ग्रिप करना दो प्लांट का। एंड देन द लास्ट इज टिश्यू कल्चर्स इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। लास्ट टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर्स इट मींस द सिंपल वर्ड ऑफ टोटीपोटेंसी। ये वर्ड आता है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। The totipotency it means one single cells are able to make the whole organisms, able to make whole organisms. Single cells are able to make whole organisms. The single cell is make to whole plant, make to whole plant. They call as totipotency. तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि यहाँ पे the plant cell from a different part of the plants culture in the laboratories and develop a new plant। कि मेरे पास समझो लिफ का टुकड़ा टुकड़ा हुआ एक टुकड़ा था पेटी डिश में, मैं उसको लैब के अंदर लेके गया और पेटी डिश में उसको अगार अगार जेल पे रखा। कहाँ कहाँ पे, अगार अगार नाम का एक, सॉरी ऊपर लिखता हूं मैं, मेरे पास एक अगार, समझो मेरे पास एक पेटी डिश है और यहाँ पे मैंने क्या लगा, अगार और अगार अगार नाम का जेल। अब इस जेल के अंदर मैं एक लिफ का टुकड़ा डालूंगा और फिर उससे क्या बनेगा, नया प्लांट, है ना, सिंपल। अब ये टिश्यू कल्चर्स ये आता है बायोटेक्नोलॉजी में। अब बायोटेक्नोलॉजी में दैट्स वेरी वास्ट, इतना वास्ट है भाई वो कि आज उसकी रिगार्डिंग कुछ इथिकल कंसर्न हो रहे। मतलब इतना साइंस ने आतंक मचा दिया उसमें कि किसी पीक का एक जीन निकाल के किसी राइस में डाल रहे ताकि विटामिन प्रोड्यूस हो। अब बताओ कुछ लोग खाएंगे उसको, नहीं खाएंगे ना। ये कर रहे लोग, आतंक फैला रहे भाई, ठीक है, चलो। तो दे आर द सिंपल टिश्यू कल्चर, इट मींस वन सिंगल single cells able to produce a new individuals in the laboratories and prevention of the endangered plant species। भाई जो endangered plant है इट मींस टूवर्ड द एक्सटिंक्शंस, उनको बचाने का काम ये कर रहे हैं, कौन, टिश्यू कल्चर्स, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप आता है, ठीक है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता है, लेकिन व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस है क्या, एडवांटेजेस देखिए। तो सिंपल है, द mates आर नॉट रिक्वायर्ड, इट मींस ओनली सिंगल parent is involved in there, so there are no need to be, no need to parent, no need to fertilize, no need to make a zygote, that's why only single is parent is sufficient for that। then the process of reproduction is rapid, एक ही parent है, एक ही parent है सिर्फ, और प्रोसेस भी रैपिड है। अगर कितना अच्छा होता अगर ये हमारे इंसान में पाया जाता, ना शादी का झंझट, ना घर का लफड़ा, कुछ नहीं, ना आतंक, सब शांति से रहते ये एकदम नॉर्मली, ठीक है। लेकिन दिस इज नेचर भाई, नेचर सिलेक्ट करता है हमें। देन द प्रोसेस दैट इज वेरी रैपिड, दैट द एडवांटेजेस। देन इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द वेरी लेस टाइम, जितने चाहिए उतने ऑर्गेनिज्म फटाफट खट 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 कॉपी कॉपी पेस्ट, पूरा क्लोन इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल बना देते हो एकदम, वेरी रैपिड टाइम्स यूज करते। देन द पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस पास टू द सक्सेसिव, जितना मटेरियल उनके पास है अगले जनरेशन में उतना ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उसी कैरेक्टर के साथ, एंड इट ऑकर्स इन वेरियस एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते खुद को, ठीक है, ज्यादा एडवांटेज। नाउ नाउ डिस्कस विद द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस,
डिसएडवांटेजेस क्या भी पहला इनका कि दे आर द लैक ऑफ डाइवर्सिटी है ही नहीं। मतलब अगर समझो कि एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है तो नेचर के हिसाब से वो ढाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछला वाला जो जेनेटिक मटेरियल वही तो आया है, कोई चेंजेस है ही नहीं उसमें। कोई, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है ना यहाँ पे, मियोसिस तो नहीं, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है। इसलिए जो कैरेक्टर पिछले थे वही कैरेक्टर आगे हो रहे हैं। तो नेचर के हिसाब से क्या होता है कि चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डाइवर्सिटी उनकी बनेगी नहीं, इवोल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, देन दे आर अनेबल टू अडाप्ट द चेंज एनवायरमेंट। भाई कैसे होंगे अडाप्ट? भाई उनके जीन अगर पिछले वाले 700 पुराने, अगर पुराने ही जीन है तो कैसे होगा? So they are not able to the adapt regarding to the environment. Okay, and the last one is single change to the environment would be eliminate the entire species. कि अगर सिंगल चेंज हुआ तो पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, अर्थ से संप जाएगी। तो ये थे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड ऑल अबाउट इट। अगर आपको लेकर अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।